mic disrupted the All class. right, all right. I share the link just on 2x की speed पे watch those videos, right? That is going to be useful for you, right? And today, guys, we'll be completing with macro. We'll be completing a major chunk of macroeconomics because then you will have to again practice mocks, right? Economics is all about understanding the concept and choosing the right option. And right option means when you have some basic amount of knowledge about it, right? So, Garvit, Yes, ma'am. एक छोटा सा टेस्ट हो जाए पहले. Okay, ma'am. Right. It's a kind of KBC, right? Question. It's from the entire syllabus of macroeconomics since today's class is all about macroeconomics. So the first question is particularly who is considered, the basic question, who is considered to be the Indian father of economics? BC Mahanolobis. No, ma'am. No, ma'am. Minister. Prime Minister. He was Prime Minister. It's okay. If you give wrong answers, that's completely fine. Just don't keep a mum. Guys, the answer is Kunj. Even you can switch on your mic. Yeah, we'll Ma'am, start. Dadabhai Naroji. No, the answer is Dr. Manmohan Singh. He's considered to be the father of economics, and I told you that he was also a prime minister, right? अब इसके लिए एक फैक्ट याद रखना कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मूवी देखी है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जिसमें मनमोहन सिंह को पूरा दिखाया हुआ है कि वो कैसे प्राइम मिनिस्टर बने एंड लेटर पर्टिकुलरली व्हाट वर द चैलेंजेस दैट ही फेस. तो उसके अंदर पर्टिकुलरली दिखाया हुआ है मूवी के अंदर और उस पर एक बुक भी बेस्ड है दैट इज रिटन बाय संजय बारू. तो आई वॉज चेकिंग योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. उसमें एक मैच द फॉलोइंग दिया हुआ था. उस मैच द फॉलोइंग के अंदर आपको 4 ऑथर्स दिए हुए थे विद रिस्पेक्ट टू फेमस बुक्स and the name of the books and you will have to match them, like first belongs to B part, 2 belongs to C part. So make sure कि आप famous वाली books पढ़ के जाओ, right? Next question particularly, Garvit, what are the methods of calculation of national income? Value added method, income method, and expenditure method. Right. What is the other name of income disposal method? Expenditure. Right answer. Next question, what is the difference between depreciation and capital loss? मैम डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस. मैम डेप्रिसिएशन जो है उस पे प्रोविजंस बन सकते हैं और कैपिटल लॉस पे प्रोविजंस नहीं बनते. कैपिटल लॉस एक्सपेंसेस की वजह से होता है और डेप्रिसिएशन वियर एंड टीयर की वजह से होती है. ऐसा कुछ था. Partially correct. Kunsh, what is the difference between depreciation and capital loss? Depreciation occurs over a period of time, and capital loss is sudden. Kind of. See, depreciation refers to fall in value of fixed assets due to normal wear and tear, change in technology or due to passage of time. एक एप्पल का फोन आज लिया है, कल को उसकी वैल्यू फिर से गिर जाएगी क्योंकि मार्केट में फिर से एक नया मॉडल आ जाएगा. दैट्स डेप्रिसिएशन. कैपिटल लॉस इज एन अनएक्सपेक्टेड लॉस. अनएक्सपेक्टेड इन द सेंस कुछ फायर इंसिडेंट हो गया फैक्ट्री के अंदर, कुछ मशीन डिस्ट्रक्शन हो गया ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स कैलेमिटीज, दैट इज कैपिटल लॉस. डेप्रिसिएशन हमें पता है कि मशीन डेप्रिशिएट हो रही है तो हम कुछ प्रोविजन बना के रखेंगे उसको रिप्लेस करने के लिए. बट कैपिटल लॉस के अंदर होता है कि हमें पता ही नहीं, अचानक से कुछ भी हो सकता है, तो देयर इज नो प्रोविजन दैट इज मेड फॉर रिप्लेसमेंट, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस? Random question. Anyone can answer. What is the other name for capital consumption allowance? Garvit, Kunsh, are you awake? No idea, ma'am. Garvit? Depreciation. Next question. Kunsh, what are the functions of RBI?
Ma'am, it is the only authority that prints note. It is banker to the government, Yes. and it supervises all the commercial banks. Okay. And what do you mean by repo rate? Yeah, it also controls the cash flow of the economy. Yeah. And what do you mean by repo rate? Repo rate होता क्या है? Repo rate is the rate at which a commercial bank takes advances from the central bank. And what is the difference between repo rate and bank rate? Repo rate is for long term usage, and bank rate is for short term usage. गर्व ठीक बताया उसने. No, ma'am. क्या डिफरेंस है? Ma'am, repo rate is for short-term periods and bank rate is for longer-term periods. राइट. उल्टा बोला है आपने. कुछ याद रखना, बैंक बी पहले आता है तो वो लॉन्ग के लिए होता है. ठीक है. बाद में जो आया वो छोटे के लिए होता है. Okay. Right. Next question. What is the difference between repo rate and reverse repo rate, Garvit? Ma'am, repo rate is when central bank gives loans to the commercial banks for short-term periods, and reverse repo rates means when commercial banks give central bank loans for short-term periods. Right. Next question. मुझे ये बताओ कि in India. अच्छा चलो वो छोड़ो अभी. When was RBI formed? From 1st April 1935. Right. Kunsh, who issues 1 rupee notes and coins? The Ministry of Finance. Right. And who is responsible for the calculation of national income? RBI. No. Calculation of national income. Garvit? Ma'am, government. सुना था CSSO का नाम सुना था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. Yes, ma'am. Yes, उसके ma'am. साथ या उसके साथ प्लस करके फिर नेशनल सैंपल सर्वे, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन प्लस नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू पर्टिकुलरली NSO. एक नई बॉडी बनी थी, सुना था. ये NSA जो होती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. राइट. Next, Kunsh, what is the difference between GDP at base year and GDP at current year? Garvit, what is the difference between GDP at current year and GDP at base year? Ma'am, GDP at base year means, ma'am, the assumption that a government makes that GDP would be like this, and the current GDP is the current GDP, ma'am, which is the actual GDP in a See, year. GDP कैलकुलेशन एट बेस ईयर एंड करंट ईयर का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि आज एक चॉकलेट है वो 10 रुपीज़ की है और कल को वो 8 रुपये की. येस्टरडे इट वॉज ऑफ 8 रुपीज़ एंड टुडे इट इज ऑफ 10 रुपीज़. राइट. अब क्या होगा कि अगर हम पर्टिकुलरली कल से कंपेयर करेंगे तो हमें इतना पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि हम सिर्फ प्राइस के टर्म्स में कंपेयर कर रहे हैं, हम क्वांटिटी के टर्म्स से कंपेयर नहीं कर रहे. बट अगर हम एक बेस ईयर से मान के चले और हर साल का उसी से कंपैरिजन करें तो हम रियल एनालिसिस कर पाएंगे इकोनॉमी के अंदर एज टू देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन आउटपुट और इंक्रीज इन प्राइसेस टू शो वेदर देयर हैज बीन इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री. राइट. अब मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था क्योंकि अभी 2025 में जीडीपी बेस ईयर रिवाइज हुआ है. पहले 2011-12 लेते थे, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना. अब का जो पर्टिकुलरली बेस ईयर लिया है हमने वो लिया है 2024 का. राइट. तो जीडीपी बेस ईयर रिवाइज होकर अब 2024 हो गया है. एंड कुंश, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPI? कुंश. Ma'am, yeah, I don't remember. Consumer Price Index, yeah, Consumer Price And Index. what is WPI? Sorry, ma'am? What is WPI? Wholesale Price Index. Oh, okay, ma'am. I'll remember. You are from which school? Ryan, Ryan International. Which one? Which branch? Sector 25, Rohini. Sector 25, Rohini. Right. And what are you planning to do? BBA or BCom? BBA from? IP.
IP and which college? IP Uh, specifically. Specifically Maharaja. Why not WIPS? मैम विप से बेटर तो महाराजा ही है. Maharaja Karsen Institute of Management. Yeah, Names. yeah. And also MSIT. No, ma'am. Maharaja Agastyan or Maharaja Surajmal is the main target from IP. And DU doesn't has colleges for BBA except that. Yeah, and if I get a good or better college for BCom, I go with DU BCom honors or program? program. Program. Why you want to join your family business? No, no, nothing like that. You want to go for MBA? I'll go, but later on, not planning as such अभी तो. Right, with graduation थोड़े पहले. BCom program, I think then BCom program is in all the colleges, right? BCom program, BCom honors हर जगह नहीं होता, BCom program तो होता ही है. हाँ, that's why honors बहुत ही limited college में DU में. Right. But don't you think that instead of going for BCom program, you should go for honors, specialization? Ma'am, I don't have maths. I didn't have maths in class 11th and 12th. And maths is a compulsory subject for BCom honors. नहीं, ma'am, that has been discontinued अब तो, but BCom honors has lot of mathematics. Ma'am, whatever course I'll get, I'll try and choose the best among them. Yeah. I'm just aiming for You can not also sponsors. go for both of you, in fact, Garvit also, since you both have particularly the same choices as of what I can analyze. You can also go for BBE, Bachelor in Business Economics. Ma'am, does that require mathematics? No. Hardly that requires any maths, and that is a basic level maths. Like you have done an economics and calculation of national income, calculation of money multiplier. This is the basic requirement also, even in the BBE as well. Since I Ma'am, have is this available in this course is available in IPU University? BBE, Yeah. I am not sure about IP University. I'm sure about colleges like I have been studied from this GGS at NSP. Guru Gobind Singh. Yeah, I have done BA Economics Honors from here. So there were few of my friends who were doing BBE. Like once I had enrolled in the college, after that, then we became friends, and then they told me no, maths इतना चाहिए नहीं होता है उसमें. So you can go for BBE. Ma'am, Guru Gobind Singh comes under DU or IP? DU, it's a part of DU, Delhi University. Oh, okay. You can go for that. Otherwise, you can both of you can also go for BMS. BMS requires maths, ma'am. Yeah, that's required, but इतना तो फिर कर ही लोगे, I think. No, it's a necessity to have maths in class 11, 12 for BMS. Is it? Yeah. Achha. I don't know much. It was, see, this is a commerce college, NSP1, and it only has, I think, 5-6 courses. So I don't know much about it, but frankly speaking, BA Economics Honors also requires maths, like in statistics. And you know what happened when I was in class 12th? There were few of my friends who did not had maths. I had maths, economics, both the subjects. So I was not very clear whether I had to go for economics honors that time. So what happened was that during that time a rule passed out, and according to that rule, the students who did not had maths in class 11th and 12th could not go for BA Economics honors. So many of my friends particularly could not take up economics courses simply because they did not had maths in their class 11th and 12th. And before my term, particularly, there were my seniors who did not had maths, and they were doing BA Economics honors from good colleges, like excellent colleges rather. Hindu, SRCC, Hansraj. These are the top-notch colleges, right? Yeah. So, like, chalo, discussion over. Let's go with the syllabus again. So, what was I discussing? Yeah, I had already, Garvit, had I completed the entire RBI portion? Garvit. Yes, ma'am. Yeah. So Yes, many, ma'am.
मैंने पूरा आरबीआई पोर्शन करवाया था. इसके अंदर गाइज मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग कॉन्सेप्ट्स. वी विल जस्ट ट्राई टू कवर अप द सिलेबस वेरी क्विकली. You all know the basic concepts. I just need to get polished your concepts, and at the same time today I'll be sharing a PDF. That PDF involves entirely PYQs, right, that have come up in the paper. So make sure that you are revising that PDF again and again. First iteration, second iteration, third iteration. उस PDF को अच्छे से एक एक क्वेश्चन को रट देना. क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि दे आस्क सिमिलर क्वेश्चंस. ऑफ कोर्स देयर माइट बी चांसेस दैट दे माइट रिपीट, they might not repeat the questions, but at the same time they will repeat the themes. For example, Garvit, what is open market operations? Buying and selling of securities in the market. Right, and this open market operations has always been in the paper since last 2 years, so make sure that you revise it, right? So coming back, I'll give you a quick revision for RBI since you have already done that. So just guys, do you have a paper and pen in your hands? Do you have a paper and pen? No, ma'am, but I can get it. Yeah, go quickly. Garvit, had we started with BOP and FER? Yes, ma'am. Right. मैंने क्या पढ़ा दिया था? फिक्स्ड पढ़ा दिया था. फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल शायद मैंने करा दिया था, जितना मुझे याद आ रहा है. Let me check. Yes, ma'am, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल करवा दिया था. CUET ना, वैसे CUET अगर प्रॉब्लमेटिक भी है तो CUET एक एडवांटेज भी दे रहा है. आप लोगों का नॉलेज बेस हमसे बड़ा होगा, मतलब जो प्रीवियस बैचेस है उससे ज़्यादा आपका नॉलेज बेस होगा with regard to different subjects, with regard to general awareness, with regard to basic quant English, isn't it? Kunsh, are you back? Kunsh, are you back? Can we start? Yes, ma'am. Right. So in the first lecture, I had told you about RBI and monetary policy. When I see the need of writing, for example, in solving few numerical questions or calculation of total deposits, I'll switch to the whiteboard and start writing. Right. Till the time listen, and जो भी facts आपको नहीं पता होते हैं. For example, पिछली क्लास में आपको ये नहीं पता था कि coins और 1 रुपये नोट कैसे कौन इशू करता है, तो उसको शॉर्ट में अपने बुक में कहीं पे लिखते रहना, या फिर अपने जो भी नोट्स पेपर पेन आप जैसे भी बना रहे हो उसके अंदर लिखते रहना कि पेपर से एक दिन पहले आप इनको देख कर जाओ, इन फैक्ट्स को. राइट. मेक श्योर पर्टिकुलरली व्हाट यू आर डूइंग विद दिस इज दैट right. Make sure particularly that before the examination, actual day of the examination, you are going and you are particularly revising these facts so that you know and you can take the right option. And just tell me one thing, what is the Garvit, what is GDP? Ma'am, gross domestic product. Yes. And Kunsh, what is the formula for national income? Kunsh, are you here? Ma'am, full form of formula. जैसे GDP लिखते हैं हम लोग, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को क्या लिखते हैं हम? Net national product. NDP, what is NDP at FC? NDPFC. हाँ, क्या होता है वो? डोमेस्टिक होता है, नेशनल होता है? Domestic. और नेशनल? NNP. At FC. Right. And just tell me particularly one thing, if the formula is GDP at MP,
right, is GDP at MP, and I have to go from GDP at MP to NNP at FC. How will I shift? Kunsh, can you tell me? If we are at GDP MP and we have to go to NPM, Yeah. FC, right? कैसे जाएंगे? We will deduct depreciation, Right. GDP, and add NFIA, Yes. and we'll also deduct NIT. Yes. And what is the formula for NIT? Formula Yes. IT minus subsidies. Right. And just tell me, in India, which kind of exchange rate system are we following? Sorry? In India, which kind of exchange rate system are we following? The mixed exchange rate, I forgot the term. Mixed or managed? Manage. What is the other name of managed? Floating. Other name of managed floating rate system? I don't remember that. Dirty floating? Yeah, maybe yes. Yeah, it's dirty floating. And just tell me, what are the features of managed floating rate system? Why is it being adopted in India? I know the features, but I don't know the why it is followed in India. Okay, just tell me which exchange rate system involves RBI. Managed floating. Right. And which is driven by market forces of demand and supply. Fixed or flexible exchange rate system. Sorry, ma'am? Which exchange rate system is driven by market forces? Fixed or flexible? Fixed. Fixed is No, driven. sorry, fixed flexible. Fixed is determined by the government. Right. And flexible by? Because it is the exchange rate is derived by the forces of demand and supply. Right. So in the first class particularly, we had already studied RBI and monetary policy with and also the functions. Make sure that you understand all the four aggregates of money. What were the four aggregates of money? M1, comma M2, comma M3, comma M4, right? This was the four aggregates of money. That was M1, then was M2 particularly, then was M3, and then particularly there was M4. These were the four aggregates of money. After these four aggregates of money, I told you M0 and M1. M0 मतलब M0 होता है, M0 और M1 एक ही होता है. Particularly, it is the same concept, right? After that, this I told you what is okay. Punch, what is a stock and flow concept? I had already taught this in previous class. Stock और flow क्या होता है? Now, stock is a value it is measured at a particular point of time, and flow is the value which is measured over a period of time. What are the examples of stock? Example of stock concept? Ma'am, I remember a flow. स्टॉक का याद रखना, S फॉर स्टॉक, C फॉर कैपिटल. SC हम लिखते हैं शेड्यूल कास्ट. तो SC Money supply money supply is a stock concept or flow concept? of wealth. Yeah, these are all stock or flow. These are stock. Right. And what is the flow concept? Ma'am, it is a variable that is measured over a period of time. Example? Income, salary. Right. Education. Over a period of time. Over a period of time. Yeah, okay. Right. So coming back to this particularly, I told you what is money supply. We gave the four aggregates of money. Then I told you RBI, he is the father of the monetary policy. So father of all Indian banks, the mother of monetary policy, and is also known as Central Bank of India. There are three other names. Guys, whatever facts you don't know, just keep mentioning in short, particularly in your notes itself, right? I'll be scrolling down very quickly because this has all been discussed in the first class itself. After that, particularly, we went to the second chapter where we discussed about RBI. In the RBI, I told you RBI has five functions. The first is banker to the government, wherein it acts as agent, accept deposits from the government. After that, we have the second function particularly, that is bank and supervisor. The third function particularly we had is currency authority. The fourth is custodian of foreign exchange reserves, which means again manage floating rate system. RBI maintains certain reserves of foreign exchange. The last function particularly is of controller of money supply and credit, जिसके अंदर हमने पढ़ा था repo rate, bank rate, reverse repo rate, open market operations, and then margin requirements, right? ये हमने डिस्कस कर लिया था गर्वित.
Yes, ma'am. Right. After that, Garvit, what is margin requirements? Marginal requirements. Right. बताया था कि जब एक लोन लेते हैं तो गवर्नमेंट बैंक जो होते हैं पर्टिकुलरली वो पूरा लोन Yes, का ma'am. अमाउंट नहीं देते, Ma'am, कुछ collateral, mortgage, राइट, कोलैटरल में थोड़ा सा ज्यादा पर्टिकुलरली वो अपने पास रखते हैं कि कल को अगर इंसान डिफॉल्ट कर गया, depreciation. राइट, अगर कल को इंसान डिफॉल्ट कर गया तो हमारा मार्जिन रहेगा, राइट. So after this margin requirements, I told you the difference particularly between qualitative and quantitative credit. After that, particularly, I told you to insert the heading of the next unit, that was BOP and foreign exchange, right? In the BOP and foreign exchange, what I told you is that in the BOP and foreign exchange, we had the first concept. I told you that there are three particularly units. In the three, we had the three particularly systems of exchange rate. The first was fixed exchange rate system. The second was particularly, the first was the fixed exchange rate system. The second was the flexible exchange rate system, and the third is the managed floating rate system, right? Fixed मैंने बताया था कि fixed कौन सा होता है, जो particularly government के लिए होता है. Next मैंने बताया था इसके अंदर होता है flexible exchange rate system. फ्लेक्सिबल होता है जो पर्टिकुलरली मार्केट फोर्सेस के लिए होता है, राइट. एंड लास्ट मैंने इसके अंदर बताया था जो होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम. इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट दैट इज डिफिकल्ट, राइट, कंपैरेटिवली पर्टिकुलरली फॉर द स्टूडेंट्स. तो उसके अंदर पर्टिकुलरली वो डायरेक्ट क्वेश्चंस देंगे आपको, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किसके अंदर आरबीआई आता है, किसमें गवर्नमेंट आता है, राइट. नाउ व्हाट इज पेगिंग, गर्वित, व्हाट इज पेगिंग? मनी से रिलेटेड होता था ना? नहीं मैम, फॉरेन एक्सचेंज मनी से रिलेटेड होता था. Right. Pegging refers to when central bank, sorry, when the government ties the value of one currency in terms of another foreign currency. मतलब एक करेंसी के टर्म्स में दूसरी करेंसी की वैल्यू फिक्स कर देना कि मान लो 75 रुपीज इक्वल टू $1 ही रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, राइट. इसको बोलते हैं पेगिंग. अब पेगिंग मुझे बताओ कौन से सिस्टम के अंदर आती है? फिक्स्ड. राइट, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये काम किया है तो दैट इज कॉल्ड एज पेगिंग. राइट. आफ्टर दिस पर्टिकुलरली मैंने आपको डायग्राम बना के, डायग्राम पर्टिकुलरली पेपर के अंदर आता नहीं है क्योंकि यूजुअली दे डोंट गिव सच क्वेश्चंस, दे गिव मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो आपको जो जैसे होता है इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड वाले वो कॉन्सेप्ट्स आपको समझने की जरूरत नहीं है, राइट. बस इतना समझना कि व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी तो क्या होगा उससे? Increase in demand for domestic currency. प्राइस ज्यादा होगा. राइट. तो हमारी करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई. यस मैम. और डिक्रीज इन डिमांड में अप्रिशिएट हो जाती है, उल्टा, ठीक है. अब इसके अंदर फिर बाकी का पोर्शन कट गया था, जो ट्रांसफर फंक्शन था, क्रेडिट फंक्शन था और हेजिंग फंक्शन था, वो तीनों कट गए थे. यस मैम. सिलेबस में से. फिर अच्छा मुझे ये बताओ, वैसे स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट पता है, शेयर मार्केट में डील करते हो? यस मैम. मैम स्पॉट मार्केट होता है जहाँ पे ऑन द स्पॉट ट्रांजैक्शंस और बाइंग एंड सेलिंग हो जाती है, और फॉरवर्ड मार्केट होता है जहाँ पे फ्यूचर किसी डेट को रख के ट्रांजैक्शंस होती हैं. राइट. एग्रीमेंट. बट रेट आज का चलेगा फॉरवर्ड के अंदर, रेट आज का होगा बट किसी फ्यूचर डेट पे ट्रांजैक्शन होगी, राइट. यस मैम. और स्पॉट के अंदर आपने सही बताया, बट मेक श्योर कि आप ये याद रखो कि मार्जिन 2 दिन का मार्जिन फिर भी रखते हैं, क्योंकि चेक 2 दिन लेता है क्लियर होने के अंदर, राइट. T+2 वाला जो थोड़ा था. राइट. गॉट इट. यस मैम. इसके अंदर ये तीन एक्सचेंज रेट सिस्टम्स को अच्छे से पढ़ लेना. और फिर मुझे बताओ डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन के अंदर डिफरेंस क्या होता है? मैम डेप्रिसिएशन होती है मैम जो मार्केट फोर्सेस से होती है, और डिवैल्यूएशन होती है जो गवर्नमेंट खुद करती है करेंसी पे. डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है डिवैल्यूएशन? डिक्रीज. राइट. और फिर रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन उल्टा हो जाता है. यस मैम. अच्छा, गिव मी एनी 3 फैक्टर्स पर्टिकुलरली दैट लीड्स टू डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी. हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत कब पड़ती है? मैम जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में. हम इंपोर्ट करेंगे तब चाहिए हमें, या फिर जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तब चाहिए हमें? मैम इंपोर्ट. राइट. और कब चाहिए होती है? जब टूरिज्म के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं. टूरिज्म. यस मैम. मैम टूरिज्म एक यूनिलैटरल ट्रांसफर्स. राइट. लैंड खरीद रहे हैं, स्पेकुलेशन कर रहे हैं. यस मैम. हम ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड गुड्स. राइट. और एक स्पेकुलेशंस. राइट.
उसके बाद एडिंग ऑन टू दिस पर्टिकुलरली इसके अंदर इस यूनिट के अंदर सिर्फ चैप्टर के अंदर सिर्फ ये एक्सचेंज रेट सिस्टम्स अच्छे से पढ़ के जाना तीनों के तीनों, और एक्सचेंज रेट सिस्टम्स के बाद एप्रिसिएशन डीवैल्यूएशन का, राइट। अब मुझे ये बताओ पर्टिकुलरली, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मानो कि फॉर एग्जाम्पल $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज, राइट। उसके बाद पर्टिकुलरली $1 की वैल्यू अब दोबारा से 80 हो गई है, तो इसके अंदर मुझे ये बताओ कि इसमें डीवैल्यूएशन हुआ है या रीवैल्यूएशन हुआ है? डीवैल्यूएशन हुआ है, अपनी करेंसी का तो डीवैल्यूएशन हुआ है क्यों? मैम, क्योंकि जो हमारे $1 के लिए 75 रुपीज लग रहे थे, अब वो 80 लग रहे हैं, तो मैम उस करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट होगी ना, तो हमारे उसमें तो उनकी वैल्यू कम हो गई। राइट। नेक्स्ट कुंश, मुझे ये बताओ Yes, ma'am. डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन में डिफरेंस क्या है? Ma'am, depreciation occurs over a period of time naturally, but devaluation is done intentionally. डीवैल्यूएशन होती है कुछ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर जो गवर्नमेंट करती है, इंटेंशनली गवर्नमेंट करती है, और डेप्रिसिएशन होती है जो मार्केट फोर्सेस में खुद से हो रही है, डिमांड और सप्लाई के मिसमैच की वजह से, ठीक है। राइट। इसके अंदर आई वाज टेलिंग कि वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस एक्सचेंज रेट सिस्टम्स इन द प्रीवियस क्लास। आई शेयर्ड द लिंक, जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो 2x की स्पीड पे, यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट। तो इसके अंदर 3 एक्सचेंज रेट सिस्टम्स पढ़ना और आपको ये पता होना चाहिए। कुछ आप बताना जरा $1 का, एक मिनट, लेट्स चेंज इट। $1 का पहले 75 रुपीज का था, अब $1 पर्टिकुलरली 72 का हो गया। तो कुछ कैन यू टेल मी डेप्रिसिएशन हुआ है, एप्रिसिएशन हुआ है? Depreciation of rupee. रुपी का डेप्रिसिएशन हुआ है। हाँ मैम, अगर 70 का था पहले, अब $1 72 का हो गया है, तो रुपी का तो डिप्रिसिएशन ही हुआ है। रुपी रॉन्ग, रुपी 7, मैंने उल्टा बोल दिया। राइट, यू आर राइट। मैंने ना ये साइन उल्टे डाल दिए और ये आपके स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, ठीक है, आप सही। स्क्रीन देखी नहीं मैम मैंने। अच्छा, आप मेरे बोलने पे बोल रहे हो, ठीक है। हाँ जी मैम। चलो ठीक है, हाँ राइट, यू आर राइट। तो आपको ये पता है ना कि कब डेप्रिसिएशन हो रहा है और कब एप्रिसिएशन हो रहा है? यस मैम। और इसका सीधा कंसेप्ट अगर कभी कंफ्यूज भी हो जाओ तो पेपर में ऐसे लगा लेना कि हमारे ₹1 देकर उनके कितने पैसे हमारे पास आ रहे हैं, कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं, राइट। When I was in the paper, particularly class 12 board, I really got confused in 1-marker question. There were pattern was same like you have given your boards. 20 marks initially is for that MCQ based 1 markers, and then 60 marks is the subjective paper. So एक नंबर का एक क्वेश्चन आया हुआ था, एंड वो क्वेश्चन पर्टिकुलरली मेरा फर्स्ट नहीं रहा था उस टाइम पे, मुझे समझ नहीं आ रहा था, बट लकीली आई जस्ट कंप्लीटेड माय पेपर इन 1.5 आवर्स। तो उसके बाद मेरे पास पूरा 1.5 घंटा था, तो उसमें मैं थोड़ा सा आराम से सोच के आ गई। अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन आया था मेरे पेपर के अंदर, कैन यू टेल मी विच नेशनल इनकम कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड? ये पेपर में क्वेश्चन आया था 2020 के बोर्ड्स में। ग्रॉस। ओके कुंश, योर आंसर? I'll also go with gross. ओके, द आंसर इज मिक्स्ड इनकम। सुना था वो मिक्स्ड इनकम एक कंपोनेंट होता है नेशनल इनकम के अंदर। मिक्स्ड इनकम क्या होता है? व्हाट इज मिक्स्ड इनकम? कम ऑन गाइस, नेशनल इनकम, मिक्स्ड इनकम क्या होता है? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, वो वाला। हाँ, तो वो मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड का एक एग्रीगेट होता है। ऐसे तो नहीं होता दुकानदारों का अलग आ रहा है, सर्विस वालों का अलग आ रहा है, सबको एक जोड़ता है सैलरी को, राइट। तो दैट इज द नेशनल इनकम विच कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ब्रोकन, राइट। तो ये पेपर में क्वेश्चन आया था मेरे। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया था पर्टिकुलरली, याद होनी चाहिए। अभी इंडिया की रैंक कितनी है HDI में? 135 140। आई थिंक इट्स 134 राइट नाउ, राइट। इसको नोट्स में लिख लेना, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अच्छा हाँ, एक और चीज, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस HDI? कौन पब्लिश करता है? मैम यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। याद कर लेना दोनों। HDI में इंडिया की रैंक चेक कर लेना एक बार, 131 या 134 है अभी।
एट प्रेजेंट, और यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको पब्लिश करता है, राइट। सेकेंड आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 105, और इसको पब्लिश कौन करता है? बहुत लंबा सा नाम है, हंगर वेल्थ विल्थ करके, तो आप सिर्फ हंगर वर्ड याद रख लेना, उससे आपको समझ आ जाएगा। हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? यस मैम। तो ये दोनों याद कर लेना, इनकी रैंक भी पर्टिकुलरली चेक कर लेना। रैंक से मैच द फॉलोइंग में या तो रैंक आता है या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा इंडेक्स कौन देता है, राइट। उसके बाद गाइस दो तीन और भी कर्व्स होते हैं पर्टिकुलरली, उनको अच्छे से पढ़ लेना। फॉर एग्जांपल 11th के अंदर माइक्रो में पढ़ा था। गाइस यू आर वेल अवेयर दैट आपकी क्लास 11th की माइक्रो भी आ रही है थोड़ी थोड़ी पेपर में। आर यू अवेयर ऑफ दिस फैक्ट? मैम इंडियन इकोनॉमिक्स भी तो है। हाँ वो भी है, बट साथ में माइक्रो भी आ रही है आपकी थोड़ी, जो आपने 11th में पढ़ी थी। सारे टॉपिक्स नहीं आ रहे माइक्रो के? नहीं, बहुत सिलेक्टेड आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, और बहुत बेसिक आएगा। आई शेयर द पीडीएफ, आज सॉल्व करके देखना। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स इज नोन एज, अच्छा छोटे छोटे टॉपिक्स ही हैं। हाँ, प्रोडक्शन। तो ऐसे ऐसे आ रहे। पीपीसी जो होता है कर्व, वो क्या होता था? कॉनकेव होता था, कन्वेक्स होता था। एंड यू एक नो, और टॉपिक्स के नेम भेज दोगे आप लिख के? हाँ मैं सब कुछ आज ग्रुप में भेज दूंगी। ग्रुप ही कल रात को फॉर्म हुआ है, तो मैंने मॉर्निंग में चेक किया था। ठीक है मैं मैम। सारे PYQ सब भेज दूंगी, और जितने भी डाउट्स होते हैं भेजते जाना ग्रुप में फटाफट। Solve maximum questions for economics, and guys this is a mantra for you and this is also a reality check for you कि अपने डोमेन को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना, क्योंकि GAT में पता नहीं होता है। GAT में होता है क्या, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व हो गए, कई बार बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, राइट। इंग्लिश के तो हार्डली बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं। रही बात जीके की, जीके में आपको नहीं पता। जीके समथिंग गाइस, इट इज लाइक एन ओशन, वो कभी खत्म हो ही नहीं सकते। रोज दुनिया के किसी ना किसी कोने में कुछ हो रहा है, उसको न्यूज बना के इंटरनेट पे पर्टिकुलरली आ जाएगा, वो फिर किसी पीडीएफ का पार्ट बन जाएगा करंट अफेयर्स के अंदर। तो आप कितना भी पढ़ लोगे, वो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। इट्स लाइक कॉन्सेप्ट पर्टिकुलरली दैट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, इट्स अ वेरी डायनामिक कॉन्सेप्ट, राइट। तो आपको नहीं पता कि आपके जीके के क्वेश्चंस कितने फंसे कितने नहीं फंसेंगे पेपर में। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्ट्रेंथन योर डोमेन, ताकि आपके मार्क्स अच्छे आए, पर्टिकुलरली टोटल आपका एग्रीगेट अच्छा बन जाए, एंड यू सिक्योर अ सीट इन योर ड्रीम कॉलेज, वट एवर इट इज, वेर एवर यू डिजायर टू सेट, राइट। तो अपने डोमेन्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना, जो भी डोमेन्स है। आई डोंट नो व्हाट आर योर डोमेन्स एक्सेप्ट माई सब्जेक्ट, सो मेक श्योर दैट यू आर स्ट्रेंथनिंग। उसके लिए क्या करना है, सिर्फ अगर इस लेक्चर को अब मैं बीओपी पूरा करवा रही हूँ फटाफट से, बीओपी एफईआर और फिर नेशनल इनकम पूरा करा दूंगी, क्योंकि आधी चीजें आपको ऑलरेडी पता है नेशनल इनकम में। अगर जरूरत पड़े तो इसी वीडियो को दोबारा से 2x की स्पीड पे देख लेना, और उसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाना। हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? Do you have some doubts, any one of you? Please speak up or use the chat. Okay, and make sure particularly economics में this year particularly as per what I have noticed is that अभी economics में ना competition भी अब कम होता जा रहा है, क्योंकि competition higher level पे ज़्यादा चला जाता है, तो लोग particularly बाद में field change करते हैं, क्योंकि जब उन्हें job market पर उतरना होता है। अभी economics में competition कम होता जा रहा है, what I have seen particularly in the past years। लोग बच्चे पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स से ज़्यादा अब आजकल फिर से ना साइंस की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। साइंस के बच्चे ज़्यादा देखती हूँ मैं तो हर जगह, क्योंकि ये पता है साइंस से सबसे ज़्यादा जो स्ट्रीम्स होती है ना वो ओपन रहती है, मतलब आई मीन स्ट्रीम्स नॉट करियर ऑप्शंस, राइट। सो कमिंग बैक टू दिस, So coming back to this now, we'll be starting with the third पहला यूनिट तो हमने पढ़ा था आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। सेकंड में बीओपी और एफईआर करा रही थी। एफईआर के अंदर मैंने तीनों एक्सचेंज रेट सिस्टम्स बताए थे, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल और मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। इनके दूसरे नाम याद रखना और इनके फीचर्स की आरबीआई किस में इन्वॉल्व है, मार्केट फोर्सेस किस में इन्वॉल्व है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर, गाइज आई एम नॉट जस्ट स्पीकिंग, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो लिखते जाना फटाफट से, राइट। आई जस्ट टेल यू व्हाट इज इंपॉर्टेंट और किस चीज को कैसे पढ़ना है, टू मेक इट वेरी वेरी इजी फॉर यू गाइज, राइट। इसके बाद फिर मैंने बताया था कि इसके अंदर डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैसे होता है, कि हम डिमांड कब करते हैं और सप्लाई कब आती है। सप्लाई तब आती है पर्टिकुलरली जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो हमें पैसा देते हैं बाहर की कंट्री, तब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री के अंदर आता है। जब बाहर के टूरिस्ट हमारी कंट्री में आते हैं तो पर्टिकुलरली हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आता है। जब बाहर के लोग यहाँ पे रेमिटेंसेस भेजते हैं यूएस में रहने वाले, तब हमारे पास पर्टिकुलरली फॉरेन एक्सचेंज आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। कुछ व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट?
Kunsh, what is balance of payment? Ma'am, Darwin, it is the systematic. बोलूँ ma'am? नहीं बोलो हाँ. Ma'am, it is a systematic records of all economic transactions between country and occurrences of country and rest of world. राइट. ये रटी रटाई डेफिनेशन सबको याद होगी, बुक के फर्स्ट पेज पे लिखी हुई है चैप्टर में कि इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. क्वेश्चन पर्टिकुलरली कैसे आता है बीओपी के अंदर? अच्छा मुझे बताओ कि बीओपी क्या है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है? Flow. गर्वित, स्टॉक या फ्लो? स्टॉक मैम, क्योंकि किसी ट्रांजैक्शन को पॉइंट ऑफ टाइम पे ही तो मेजर करा जाता है, उसके अंदर जो बैलेंस निकलता है एक. योर कंसेप्ट इज राइट बट एट द सेम टाइम इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, राइट. तो वो एक लंबे समय की बात हो गई. अगर वो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर नहीं होता तो वो एक स्टॉक कंसेप्ट होता. ठीक है. बीओपी के अंदर अब बीओपी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इसके अंदर गुड्स आते हैं, सर्विसेज आते हैं, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स आते हैं. ठीक है. फटाफट से गाइस चार्ट बना के लिखते जाना. जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो मैं फिर उसके लिए मैं व्हाइट बोर्ड खोल लूंगी. ठीक है. तो बीओपी का ये होता है. बीओपी के बाद बीओटी क्या होता है? व्हाट इज बीओटी? एनीवन कैन आंसर. बीओटी क्या होता है? मैम बीओटी मैम बैलेंस ऑफ ट्रेड मैम, जो करंट अकाउंट ट्रांसफर जिसमें इंक्लूडेड होते हैं मैम. बीओटी मतलब नेट एक्सपोर्ट्स ही होता है एक तरीके से. राइट. इसके अंदर सिर्फ गुड्स होते हैं, इसके अंदर सर्विसेज नहीं होते हैं. ब्रैकेट में लिख लेना, डज नॉट इंक्लूड्स एनी सर्विसेज, डज नॉट इंक्लूड्स एनी रेमिटेंसेस. कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूड होते हैं इसके अंदर. नेक्स्ट, आफ्टर बैलेंस ऑफ ट्रेड पर्टिकुलरली अब देयर आर टू अकाउंट्स. द फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट एंड द सेकंड इज करंट अकाउंट. अच्छा मुझे बताओ, बीओपी इज अ पार्ट ऑफ बीओटी या बीओटी इज अ पार्ट ऑफ बीओपी? मैम बीओटी इज अ पार्ट ऑफ बीओपी मैम. बीओटी इज अ नैरोअर कांसेप्ट, बीओपी इज अ वाइडर कांसेप्ट. राइट. क्योंकि बीओटी के अंदर सिर्फ गुड्स आते हैं, बीओपी के अंदर गुड्स भी आते हैं, सर्विसेज भी आती है, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स भी आते हैं. राइट. उसके बाद दो अकाउंट्स लिखो फटाफट से. द फर्स्ट अकाउंट पर्टिकुलरली इज द करंट अकाउंट. द फर्स्ट अकाउंट पर्टिकुलरली इज द करंट और द सेकेंड इज द कैपिटल अकाउंट. दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, फर्स्ट इज करंट एंड द सेकेंड इज कैपिटल अकाउंट. करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है? करंट अकाउंट वो होता है जिसके अंदर पर्टिकुलरली ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर इंक्लूडेड विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज. लिखते जाना फटाफट. एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, unilateral transfers. Kunsh, what is unilateral transfers? Kunsh, what is unilateral transfers? Ma'am, gift or remittances received from abroad. Right, but unilateral transfers का मतलब क्या होता है? एक साइडेड पेमेंट्स, मतलब एक साइड पे उन्होंने भेज दी. One way transactions. राइट. यूनिलैटरल ट्रांसफर्स होता है इसके अंदर. और लास्ट पॉइंट क्या है? इनकम रिसिप्ट्स एंड शेयर्स. इनकम रिसिप्ट्स एंड शेयर्स, ये सब पार्ट किसका होता है? करंट अकाउंट का. करंट अकाउंट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस चलती रहती है. ब्रैकेट में लिख लेना, ये लास्ट ईयर का पीडीएफ में देखना, पीवाईक्यू क्वेश्चन है. इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. 3-4 स्टेटमेंट दे दी जाती है. करंट अकाउंट इंक्लूड्स फर्स्ट, सेकंड इट इज अ स्टॉक और इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. Third, particularly, current account is not a part of BOP. How many of the following statements are correct? ऐसे में एलिमिनेशन मेथड नहीं चल पाता है, इसमें आपको सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए, तो इसीलिए आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए. राइट. First point, current account records all economic transactions which includes export and import of goods, services, unilateral transfers and income receipts. First point. After that, current account particularly is a stock concept. Current account जो होता है, it is current account is a flow concept. Over a period of time ये mention होता है. ठीक है, it is a flow concept. Second, अगर there is a surplus in current account, there is a surplus in current account, it means that India is in a favorable condition. जब surplus होगा इसका मतलब हमारे पास पैसा आ रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है. राइट. और जब हमारे पास पैसा आ रहा है उसका मतलब क्या होता है?
जब हमारे पास पैसा आ रहा है उसका मतलब ये होता है कि हम एक अच्छी सिचुएशन के अंदर है, राइट। और जब डेफिसिट होता है करंट अकाउंट के अंदर, इसका मतलब कि हम लोग इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं बाहर से, हम लोग पर्टिकुलरली बाहर ज़्यादा जा रहे हैं एज कम्पेयर टू इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट विद इन आवर कंट्री, दैट इज कॉल्ड एज डेफिसिट ऑफ करंट अकाउंट, राइट। नेक्स्ट हेडिंग डालो फटाफट से, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इंक्लूड्स capital account includes borrowings to